नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको इजराइल से आई तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो ऐतिहासिक हैं, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो आज हुआ और इस वक्त भी इतिहास लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की जमीन पर कदम रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इजराइल में मोदी का स्वागत इस अंदाज में किया जिसे देखकर लगा कि इजराइल के लोग वाकई में 70 साल से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंत्रियों के साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही मोदी के स्वागत में 40 मिनट तक समारोह चला। नेतन्याहू ने प्लेन से उतरते ही मोदी को गले लगा लिया। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच गर्मजोशी और दोस्ती दिखाई दी। नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को दोस्त कहकर बुलाया और नेतन्याहू ने भी मोदी को माय फ्रेंड कहकर एड्रेस किया, बार बार एड्रेस किया। एयरपोर्ट पर ऐसा मौका कई बार आया जब दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से गले मिले। नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत में जो स्पीच दी उसमें सबसे पहले मोदी की इजराइल यात्रा को ऐतिहासिक मौका बताया, फिर कहा माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम यू in Israel. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. We admire your culture. We admire your history, your democracy, your commitment to progress. नेतन्याहू मोदी से 2014 में मिले थे। उस वक्त मोदी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर से जो कहा था वो आज भी उन्हें याद था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और इंडिया के रिश्ते की ऊंचाई अब आसमान से भी ऊपर है। यह दोस्ती इतनी गहरी है, भरोसा इतना ज्यादा है कि वो भारत से पूछ सकते हैं कि इन रिश्तों को महकने में इतना वक्त क्यों लगा। I remember, my friend, what you said in that first meeting. You said that when it comes to India-Israel relations, the sky is the limit. But actually, my friend, the sky isn't the limit, because today, even our space programs are working together to achieve even greater heights. The ties between our talented, innovative peoples is natural. It's so natural that we could ask, what took so long for them to blossom? Well, it took a meeting of minds and hearts. It took a commitment of our governments. We have that today. On this visit, your Make in India initiative meets my Make with India policy. We're setting up a $40 million innovation fund as the seed for even greater cooperation on technology between us. Our partnership extends to water, agriculture, security, energy, many, many other fields. नेतन्याहू की बातें सुनने वाली हैं। उन्होंने मैथ्स के फॉर्मूले से इंडिया और इजराइल के रिलेशन को डिफाइन किया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया और इजराइल का टैलेंट ऐसा है कि सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा हिंदी और हिब्रू बोली जाती है और सुनी जाती है। I believe the formula for success is simple. It's I square T square. That equals Indian talent times Israeli technology. It equals Israel, India's ties for tomorrow. I square, T square. Now, I'm confident, this is the degree of mathematics I remember from my student days, but I'm confident of the real mathematics of life. I'm confident of the success of our partnership for many reasons. First is the talent of our peoples. It's been said, Prime Minister, that in Silicon Valley in California,
The two most common languages overheard are Hindi and Hebrew. Occasionally, one hears some native English too. Second, I believe in the success of our partnership because of the great sympathy between our peoples, the natural camaraderie between Indians and Israelis. और आखिर में बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का महान नेता बताया। I'm confident of our success because of leadership. Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. Your visit to Israel is a testament to that. Our two peoples have deeply held values rooted in ancient cultures, yet we both seek to realize the promise of a better future. I know, and this visit marks that very clearly, I know that we can do even more, even better together. Welcome to Israel, my friend, Prime Minister Modi. Shukran. Thank you. ये सारी बातें नरेंद्र मोदी के इजराइल की धरती पर कदम रखने के कुछ ही मिनट बाद कही गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी बोले। नरेंद्र मोदी का इजराइल की सरजमीन पर पहला इंटरेक्शन था, उनका पहला रिसेप्शन नोट था। जिस तरह नेतन्याहू ने अपनी स्पीच की शुरुआत हिंदी में की, उसी तरह मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत हिब्रू में की। मोदी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इतने वार्म वेलकम के लिए, इतने शानदार स्वागत के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहा। Ladies and gentlemen, the Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. Excellency Prime Minister Netanyahu, ladies and gentlemen, Shalom, Leklam, Anisemia Mayod, Lehiat Po. It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. नरेंद्र मोदी ने कहा कि इजराइल की सफलता यहां के लोगों की मेहनत और जबरदस्त इच्छा शक्ति का नतीजा है। इजराइल के लोग चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना जानते हैं। इस खूबी का भारत सम्मान करता है। The people of Israel have built a nation on democratic principles. They have nurtured it with hard work, greed, and the spirit of innovation. You have marched on regardless of adversity and converted challenges into opportunity. India applauds your achievements. मोदी ने कहा कि इजराइल और भारत नौजवानों के देश हैं। नौजवानों के सपने उन्हें ताकत देते हैं। नौजवान ही भारत को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। इस विकास यात्रा में इजराइल भारत का इंपॉर्टेंट साझीदार होगा। India is a very old civilization, but a young nation. 800 million people in India are below 35 years of age group. The talented and skilled youth of India are also its driving force. They propel my vision to transform India, its industry, its economy, its way of doing business, and its interface with the world. Friends, in our path of sustained high growth
and all-round development, India counts Israel amongst its important partners. और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े कंसर्न, भारत की सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल और इंडिया दोनों आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा से आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने के नए रास्ते खुलेंगे। Alongside building a partnership for shared economic prosperity, we are also cooperating to secure our societies against common threats such as terrorism. A progressive partnership in all these areas would shape the scope of my conversation with Prime Minister, my friend Netanyahu. My visit marks a path-breaking journey of engagement, a journey that we are excited to undertake together for the good of our people and societies. As we march together, a strong and resilient partnership with Israel will be my intent and focus. क्योंकि ऐतिहासिक मौका था, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच काफी मेहनत से तैयार की थी। इमोशन क्रिएट करने के लिए 41 साल पहले की एक घटना का जिक्र किया। ऐसी घटना, इजराइल ने एक ऐसा ऑपरेशन किया था जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू के भाई शहीद हो गए थे। Today is July 4. Exactly 41 years since Operation Entebbe. The day when your Prime Minister and my friend Bibi lost his elder brother Yoni while saving the lives of so many Israel hostages. Your heroes are an inspiration for the younger generations. प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ऑपरेशन की बात की वो दुनिया में आज भी हॉस्टेज सिचुएशन को लेकर सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन के तौर पर जाना जाता है। ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। 27 जून 1976 में इजराइल के तेल अवीव से पेरिस जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक हाईजैकर्स के कब्जे में थे। हाईजैकर्स इस फ्लाइट को लेकर युगांडा चले गए। युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन ने हाईजैकर्स को एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने की इजाजत दे दी। अपने नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल की आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 5000 किलोमीटर दूर 100 इजरायली कमांडोज युगांडा में उतरे और सिर्फ 90 मिनट के ऑपरेशन में अपने प्लेन को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन में सिर्फ एक कैजुअल्टी हुई थी और वो कैजुअल्टी थी बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई योनाथन नेतन्याहू। इस हमले में शहीद हो गए थे। अब से कुछ देर पहले मोदी जेरूसलम में एक मेमोरियल पहुंचे। ये मेमोरियल उन यहूदियों की याद में बनाया गया है जिन्हें हिटलर ने मौत की सजा दी थी। 60 लाख लोगों के सबसे बड़े नरसंहार का गवाह है ये म्यूजियम। बच्चों तक को गैस चेंबर में डालकर मारा गया था। इस मेमोरियल को वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर के तौर पर जाना जाता है। मोदी की इस विजिट के दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। ये मेमोरियल 1953 में बनाया गया था। जेरूसलम से इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, आज की इस यात्रा का जिक्र हम कर रहे थे। मैंने दर्शकों के बहुत सारी बातें शेयर की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने और नेतन्याहू ने क्या कहा यह भी बताया। और थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के घर पर जाएंगे। बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। तो क्या आपने जब इजराइल में लोगों से बात की नरेंद्र मोदी को लेकर के, क्या फीलिंग्स है वहां पर, किस तरह का माहौल है?
रजत जी, यहाँ पर इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि 70 साल की बर्फ पिघलने जा रही है और लोग ये जरूर पूछते हैं कि ये बर्फ 70 साल तक जमी क्यों रही। ये सवाल उठते हैं। मैं आपको बहुत ही अगर माइक्रो लेवल पर बताऊं कि अगर हम टैक्सी हायर करते हैं जेरूसलम से तेल अवीव जाने के लिए और टैक्सी ड्राइवर ये जानता है कि हम इंडिया से हैं, तो बातचीत में इसका जिक्र जरूर करता है कि वाई योर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप, ये जरूर वो पूछता है। तो उत्साह जबरदस्त है और उत्साह इस मायने में है कि इस बार जब यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री आएंगे तो उसके जो मायने हैं वो बहुत ही विराट हैं। बात सिर्फ डिफेंस डील की ही नहीं है, बात टेक्नोलॉजी के लेवल की है। यहाँ पर इस समय रजत जी साइबर सिक्योरिटी वीक मनाया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस साइबर सिक्योरिटी वीक में ये बोला कि अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो इजराइल की कंपनियों का कोई सानी नहीं है और उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को इजराइल बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी से लेकर के डिफेंस डील में तमाम सारी बातें हैं। बराक 8 सिस्टम है जिसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेजर गाइडेड अटैक टेक्निक है, मिराज 2000 पर जो लोड होती है उसको लेकर के बातचीत चल रही है। हेरॉन टीपी ड्रोन है उनको लेकर के बातचीत चल रही है। तो और एक बड़ी बात और रजत जी की जो बड़ी कंपनियां यहाँ की, जैसे साइबर चेक पॉइंट कंपनी हो गई, जैसे कि कॉर्नर शॉट कंपनी हो गई, ये सारी कंपनियां भारत में निवेश करने की बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। इनको भी लग रहा है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कई सारे आयामों पर ये रिश्ते बनने जा रहे हैं और इस रिश्ते की नींव एक नए परिप्रेक्ष्य में आज रखी जा चुकी है। अभिषेक, आप कई दिन से इजराइल में हैं। आपने जो रिपोर्ट्स भेजी यहाँ पर इजराइल की डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर के, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर के, आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं, उसकी बहुत तारीफ हुई है यहाँ पर भारत में, लोगों ने देखा। लेकिन इजराइल के जो आम लोग हैं, जब उनसे आप बात करते हैं तो क्या वो नरेंद्र मोदी को जानते हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में क्या उनके मन में उत्सुकता है? जनता क्या कहती है इजराइल की? रजत जी, उत्सुकता शब्द सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रासंगिक है। उनको जबरदस्त उत्सुकता है इस बात को लेकर के और उत्सुकता इसलिए खास तौर पे है क्योंकि वो पुराना कनेक्शन भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी वो यहाँ पर आए थे और सोलर एनर्जी में जो निवेश हुआ है गुजरात में, इजराइल की कंपनियों ने, खासतौर पर नॉर्थ गुजरात की बात करें, मेहसाणा की बात करें, उसके आसपास यहाँ की कंपनियों ने अच्छा खासा निवेश किया है। तो एक बैकग्राउंड है, उससे यहाँ के लोग वाकिफ हैं। यहाँ की जो बिजनेस क्लास है वो उससे वाकिफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी जैसे कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि उनको कई और दूसरे फोरम पे मिले जहां पर ये बातें हुई कि एक ये जो डील है उसको आकार रूप देना है। तो उनको लगता है कि इस दौरे में ये बातें हो जाएंगी। और बड़ी बात ये है कि $1 बिलियन का कारोबार इन दोनों ही देशों के बीच में चल रहा है डिफेंस का। रजत जी, इतना बड़ा उसका स्केल है और उस स्केल को अगर हम डाइवर्सिफाई करें अलग अलग क्षेत्रों में, क्लीन एनर्जी से लेकर के वाटर मैनेजमेंट से लेकर के साइबर सिक्योरिटी तक, तो स्काई इज द लिमिट, जो आज दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने बातचीत में आया कि स्काई इज द लिमिट। तो यहां के लोग एहसास कर रहे हैं कि हां, स्काई इज द लिमिट का जो फ्रेज है वो फ्रेज भारतीय संदर्भों में, इजरायली संदर्भों में एकदम समीचीन है, एकदम उपयुक्त है और ऐसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंटर में जब हैं तो उनको उम्मीद है कि उनके रहते काफी चीजें आगे बढ़ेंगी। इस तरह के यहां पर वाइब्रेशंस हैं। रजत जी, अभिषेक, जिस तरह के वाइब्रेशन से आपके लिए भी बड़ी चुनौती है इसको पल पल के लिए रिपोर्ट करना। हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे और जैसे ही डेवलपमेंट नई होती रहेंगी आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजराइल में नरेंद्र मोदी के 3 दिन का मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय है। अब से कुछ देर बाद नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर देंगे और जैसे ही डिनर शुरू होगा हम आपको यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल रेजिडेंस पर ले चलेंगे, वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस हिस्टोरिकल विजिट को कवर करने के लिए इंडिया टीवी ने खास तैयारी की है। आप इंडिया टीवी पर इस दौरे का पल पल का अपडेट देख पाएंगे। मोदी की विजिट को कवर करने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय 5 दिन पहले इजराइल पहुंच चुके थे। 5 दिन से इजराइल के अलग अलग इलाकों से उन्होंने रिपोर्ट भेजी हैं। कल अभिषेक ने इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पर गाजा पट्टी पर गए थे और वहां से उन्होंने इजराइल के बॉर्डर की वॉल पर एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी थी। अभिषेक ने बताया था कि इंडिया भी जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिफेंस सिस्टम को किस तरह मजबूत कर सकता है। आज अभिषेक इजराइल बॉर्डर के उस एरिया में गए। इजराइल ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें जवानों को तैनात करने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पर रोबो गार्ड निगरानी करेगा। यह ऐसा सिस्टम है जो आज से 53 साल बाद यानी 2070 तक पूरी तरह से इस्तेमाल होगा। इजराइल की 50 साल आगे की तैयारी आपको दिखाते हैं अभिषेक की इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में। ये इजराइल की तकनीक है। साल 2070 में किस तरह के बॉर्डर होंगे इसको इजराइल आज ही
पहले से ही एंटीसिपेट करके देख रहा है। ये फेंसिंग है इजराइल की और इस फेंसिंग में सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, यहाँ पर कोई पहरेदार खड़ा हो और लगातार निरीक्षण करे कि कौन घुसपैठ कर रहा है। इन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए इजराइल ने रोबोट बनाया हुआ है और इस रोबोट को बोलते हैं रोबो गार्ड। और अभी हम सामने से देख रहे हैं रोबो गार्ड को गुजरते हुए। इस रोबो गार्ड में जो कैमरे लगे हुए हैं उनके जरिए जो राडार सिस्टम है, देखिए जो राडार सिस्टम हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, एक एक चीज डिटेक्ट हो रही है। जो भी इस फेंसेस के आसपास आ रहा है वो सब इसकी जद में आ रहा है। यहाँ पर बाकायदा ऊपर की ओर एंटीना लगा हुआ है, सफेद रंग का जो वायरलेस एंटीना हम देख रहे हैं। इस एंटीने के जरिए जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उससे ये कनेक्ट रहता है रोबो गार्ड। अगर कोई भी इसको दिखाई पड़ेगा तो सीधे ये सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम को एक संदेश देगा कि घुसपैठिया घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर की ओर देखेंगे जो कैमरा लगा हुआ है, PTZ कैमरा कहते हैं, ये कैमरा चारों ही दिशाओं में घूमता रहता है और चारों दिशाओं में घूम करके एक एक चप्पे चप्पे की निगरानी करता रहता है। ये वो इजराइल का हथियार है जिसके बारे में आज लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या इस तरह भी हम बॉर्डर को कभी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इस तरह भी हम बॉर्डर की सुरक्षा कर पाएंगे। और एक अहम बात और यहां से हम दिखाएंगे इस साइड से कि यहां पर बाकायदा कैमरा लगा हुआ है और साथ में एक यहाँ पर हमको स्पीकर भी नजर आ रहा है, यानी कि माइक्रोफोन सिस्टम है कि अगर किसी को आगाह करना होगा कि वो हट जाए फेंसेस से, ऐसे भी लोग होते हैं जो भूले भटके आ जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर सिस्टम लगाया गया है। और एक बड़ी बात जो देखने वाली बात यह है कि अगर जिस जमीन पे हम खड़े हुए हैं किसी ने यहाँ IED लगा दिया, किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ये जो लेजर्स यहाँ पर चमकता हुआ हम देख रहे हैं, इस लेजर के जरिए थोड़ा भी अगर सरफेस में जमीन में बदलाव होगा तो तुरंत ये रोबो गार्ड इसकी सूचना दे देगा। तो आपने देखा आने वाले दिनों में कैसी चुनौतियां होंगी, इसको देख करके ऐसी टेक्नोलॉजी पर इजराइल आज से ही काम कर रहा है। अपनी फ्यूचर तकनीक को इजराइल टेस्ट भी करता है। रोबो गार्ड की तरफ से सारी फीड कंट्रोल रूम को भेजी जाती है। जो भी शख्स सरहद की तरफ आता है उसकी चेकिंग होती है। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स एक्टिव और अलर्ट है। कई बार कुछ इंट्रूडर्स घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं लेकिन इन पर फौरन काबू पा लिया जाता है। वैसे लेटेस्ट तकनीक और डिफेंस सिस्टम के लिए पूरी दुनिया इजराइल का लोहा मानती है। इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अलग है, इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर मोदी अपने काउंटर पार्ट बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। अभिषेक ने इजराइल के उस बॉर्डर से भी रिपोर्ट भेजी जहां पर मौजूद पूरे सिस्टम को इंडिया जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लागू कर सकता है। इस बॉर्डर फेंसिंग की क्या खास बात है, ये समझिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान की सीमा पर फेंसिंग का नजारा क्या होगा, ये उसकी एक झलक है। इजराइल और भारत की इसी तरह की फेंसेस भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगाने के बीच में बातचीत चल रही है और ये वो फेंसेज हैं जिनको तोड़ा जा नहीं सकता है, ये इनकी खूबी है। इजराइल ने मिस्र के बॉर्डर पर ऐसी फेंसेस लगाई हुई हैं और इन फेंसेस को अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कि यहां हमको इंफ्रारेड दिखाई पड़ रहा है। इंफ्रारेड का आशय यह है कि जो कोई भी अगर इनकेस लाइट चली जाती है तो इस इंफ्रारेड के जरिए एक मास्क सा क्रिएट होता है और जो भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है उसकी पूरी की पूरी तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। एक अहम बात और हम देख रहे हैं, यहां पर इसे फेंसोर कहते हैं। फेंसोर का मतलब है कि ये 3D प्रोफाइलिंग करता है। जो भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसकी पूरी प्रोफाइलिंग इसमें हो जाएगी और वो इस बारे में मददगार साबित होगी कि ऐसे जो रैकेट हैं, ऐसे जो सिंडिकेट हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। जो फाइबर जा रहे हैं नीचे, इस फाइबर ऑप्टिक को भी ध्यान देना होगा। अहम बात यह है कि 50 किलोमीटर तक के ऐसे फाइबर जो केबल हैं इसको बिछा करके और एक सिंगल प्रोसेसर के जरिए हम पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी कि 50 किलोमीटर की मॉनिटरिंग एक प्रोसेसर के जरिए कर सकते हैं। और इन 50 किलोमीटर में अगर किसी ने भी फटकने की कोशिश की तो उसको आइडेंटिफाई करके ठिकाने लगाया जा सकता है। और एक बड़ी बात है, हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ऐसे कई बॉर्डर हैं, राजस्थान की बात करें जहां पर कि सीमा के उस पार से और सीमा के इस पार से, यानी कि अगर हम उन खेतों की बात करें जो कि फेंसिंग के पार पड़ते हैं, फेंसिंग के पार के खेतों से लोग आते जाते हैं और उनके आने जाने का जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें भी घुसपैठ की संभावनाएं होती है। देखिए ये एक गेट बना हुआ है। इजराइल की जो बॉर्डर हैं वहां पर इसी तरह के गेट लगे हुए हैं और भारत पाकिस्तान सीमा पर इस तरह के गेटों को लगाने की बात चल रही है। अहम बात यह है कि अगर कोई फेंसिंग से उस पार जाना चाहेगा या उस पार आना चाहेगा तो जब तक उसके पास एक्सेस कार्ड नहीं होगा वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसको लगाने के साथ ही ये गेट एक्टिवेट होगा और ये देखिए गेट खुल जाएगा और इससे बाहर जाया जा सकता है और इससे भीतर आया जा सकता है। इस एक्सेस के बगैर इस गेट को पार नहीं किया जा सकता है।
कई बार कश्मीर में हमने ऐसे हालात देखे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकवादियों की लोकेशन मिल जाती है, पता चल जाता है कि आतंकवादी किस घर में छिपे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि आतंकवादी बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इजराइल इसके लिए नई नई तकनीक का, नए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करता है। उनका प्लान ऑफ एक्शन ऐसा होता है जिससे आतंकवादी एक ही जगह घिर जाते हैं, उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर किसी तरह की हॉस्टेज सिचुएशन है तो भी इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ अपना कम से कम नुकसान हो इस सिचुएशन में उसे हैंडल करती हैं। इजराइल आर्मी के स्पेशल कमांडो ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसमें एक खास तरह की बंदूकों का, गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए आतंकवादी या अटैक करने वाले की लोकेशन पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल जाती है। इसका मतलब ये कि इजराइल की आर्मी टेररिस्ट को, हाईजैकर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करते हुए उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये इजराइल का तरीका है बंधक समस्या से निपटने के लिए कि अगर कमरे के भीतर बंधक बनाए हुए हैं कुछ निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने, तो बगैर अपने आप को एक्सपोज किए हुए इस कमरे के भीतर कैसे घुसेंगे और आतंकियों को मार गिराएंगे। देखिए अभी यहाँ पर ये जो हमारे हाथ में दिखाई पड़ रही राइफल, इसका हमने रुख मोड़ा, बाहर हैं हम और यहाँ से मॉनिटर हो रहा है एक एक अंदर का चप्पा चप्पा। ये जो सामने तस्वीर नजर आ रही है ये उसी आतंकी की तस्वीर है जिसने कि बंधक बनाया हुआ है और यहाँ से एग्जैक्टली आतंकी की मार्किंग हो चुकी है बिना इस कमरे में घुसे हुए। ये वो तरीका है जिससे कि आतंकी मार्क हो जाता है और उसके बाद एक झटके में उसको निशाने पर लिया जा सकता है और ये फायर करने के साथ ही एक के बाद एक टारगेट ढेर होता हुआ। ये इजराइल का तरीका है बंधक समस्या से निपटने के लिए, बिना किसी भी तरह के खतरे को उठाए हुए टारगेट को ध्वस्त कर देना। इसी तरीके को जो भारत और इजराइल के बीच में सहयोग की संभावनाओं पर लगातार बात हो रही है, वो ऐसी ही तकनीक को इस्तेमाल करने की है। अभिषेक उपाध्याय ने ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इजराइल आर्मी को गन के साथ साथ ग्रेनेड अटैक की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी जो हमलावर है उसको पकड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में ग्रेनेड फिट होते हैं। और ये कैसे वर्क करता है ये देखिए। मेरे हाथ में इस समय जो तकनीक है वो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल क्यों है और भारत को इजराइल से कितना कुछ अभी सीखना है और भारतीय हालातों में ये तकनीक कितनी मददगार हो सकती है। ये इस वक्त मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है, ये एडवांस कॉम्बैट सोल्यूशन है इजराइल का। होस्टेज की सिचुएशन है, यानी कि आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है। तो इजराइल का तरीका यह है कि एक हाथ में पिस्टल के होते हुए और दूसरे हाथ से अगर ग्रेनेड, इस बुलेट प्रूफ में ग्रेनेड लगे हुए हैं इस जैकेट में, ये ग्रेनेड अगर फेंकना हो बगैर ये पिस्टल उतारे हुए, बगैर ये पिस्टल रखे हुए और ग्रेनेड फेंकना हो तो वो कैसे फेंका जाएगा। ये देखिए, ये पिस्टल मेरे हाथ से हटेगी नहीं, ये लगातार मेरे हाथ में रहेगी और यहां जो ग्रेनेड दिया हुआ है, ये ग्रेनेड है, इस पर एक सेफ्टी पिन लगी हुई है। ये सेफ्टी पिन, इस सेफ्टी पिन को नीचे कर दिया। इस सेफ्टी पिन को नीचे करने के बाद ये दो किनारे की ओर हमको यहां पर इसे पुश करना होगा और पुश करने के साथ ही ये ग्रेनेड हाथ में आ गया और इसको सामने आतंकियों की ओर फेंका जा सकता है। ये इजराइल का तरीका है, यानी कि हाथ से गन हटेगी नहीं और ग्रेनेड आतंकी के सीने पर जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कई बार इस तरह की खबरें आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के लिए आतंकवादियों ने सरहद पर टनल्स बनाई हैं। हमने कई बार आपको ऐसी टनल्स दिखाई हैं। ऐसा इजराइल में भी होता है। इजरायली ट्रूप्स सीमा पर टनल्स का पता लगाकर उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल में पब्लिक प्लेसेस में टनल्स बनाई गई हैं जिससे आम आदमी, बच्चे किसी भी तरह के हमले से सिक्योर रह सकें। अचानक हमला होने की स्थिति में पब्लिक प्लेसेस पर लोगों के छिपने के इंतजाम किए गए हैं। इजराइल के पार्क्स के अंदर ऐसी टनल्स बनाई गई है जिस पर रॉकेट के अटैक का असर नहीं होता। ये रॉकेट रोधी टनल है, यानी कि इस पर रॉकेट का असर नहीं होता है। भाग करके बच्चे इस टनल में घुस जाते हैं, यही उनकी जान बचाती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस टनल के साए में अपनी जिंदगी को बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। बाहर लगातार रॉकेट की
मार हो रही होती है सीमा पार से, यानी फिलिस्तीन साइड से हमास की तरफ से एक के बाद दूसरे रॉकेट यहां पर दागे जाते हैं और कितने ही बच्चों की जान जा चुकी है। उनके लिए ही इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। ये जो इसकी छतें हैं, ये जो इसकी दीवारें हैं, इन पर रॉकेट का असर नहीं होता है। रॉकेट के धमाके से ये एकदम निरपेक्ष रहती हैं। ऐसा इजराइल की तकनीक से इनको बनाया गया है। घुसना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस बात का एहसास कराता है कि मासूम बचपन गाजा के इन छोटे छोटे प्लेग्राउंड में किस तरह से जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है। देखिए यहाँ पर हल्का हल्का रोशनी की भी व्यवस्था की गई है कि अगर बच्चा यहाँ देर तक फंस जाए तो वो उसको ऑक्सीजन में कोई कमी ना आने पाए। और इसकी जो फर्श नजर आ रही है वो इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी तरह की रॉकेट निरोधी रॉकेट तकनीक का कोई असर नहीं पड़ेगा। जाहिर है नरेंद्र मोदी जब इजराइल में हैं तो इजराइल की इस तरह की तकनीक की बात करेंगे और शायद ये तकनीक हमारे काम आए। ये हमने आपको दिखाया सरहद की सिक्योरिटी कैसे होती है, लेकिन इंटरनली सिक्योरिटी किस तरह से होती है इसके भी ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। वैसे इजराइल 1 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, छोटा मुल्क है, लेकिन इजराइल में हर शख्स पर सीसीटीवी पर नज़र कैसे रखी जाती है इसका नज़ारा देखिए। इजराइल में आप कहीं भी जाइए, एक आंख लगातार आपकी निगहबानी करती रहेगी। ये वेस्टर्न वॉल है, जेरूसलम की एक ऐतिहासिक धरोहर है और जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे ठीक ऊपर 2 शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं। पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, जो भी यहां से आ रहा है जा रहा है और सारी गतिविधियों को बाकायदा कमांड और कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है। एक कदम भी आगे बढ़ा तो इस कदम के इरादे का पता उस कंट्रोल रूम में लग जाता है। और देखिए थोड़ी सी जगह है, मुश्किल से भी 10 से 15 कदम में चला हूं और यहां पर फिर मुझको एक शक्तिशाली कैमरा दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी दूरी के भीतर भी ये जो पॉइंट है, यहाँ की सारी गतिविधियां इस कैमरे के द्वारा कवर की जा रही हैं। और इसके बाद 4 कदम और चल के देखते हैं, गिन करके 4 कदम चलते हैं और इन 4 कदम के पूरा होते ही फिर से हमको एक और तस्वीर नजर आती है कि एक और शक्तिशाली कैमरा यहाँ से सारे मूवमेंट की पड़ताल कर रहा है। ये वो जगह है जो कि इजराइल का ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर देश विदेश से टूरिस्ट आते रहते हैं और इजराइल जिस तरह से निशाने पर रहता है आतंकियों के, उस लिहाज से ये मॉनिटरिंग बेहद ही अहम हो जाती है। जैसे भी कोई संदेहास्पद मूवमेंट दिखाई पड़ता है पूरे शहर में, तुरंत कमांड और कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल जाता है, सायरन जाता है और वहां से तुरंत इजराइल की पुलिस हरकत में आ जाती है। और यही वजह है कि इजराइल में अपराधियों का अपराध करके निकल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपने सरहद की सिक्योरिटी देखी, इंटरनल सिक्योरिटी के इंतजाम देखे, अब देखिए साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से इजराइल ने बनाया है। आपको याद होगा मुंबई का पोर्ट रैनसमवेयर के साइबर अटैक की चपेट में आ गया था, पोर्ट का कामकाज बंद हो गया था, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं हो सकता। अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि इजराइल ने ऐसे सर्वर और सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं जो साइबर अटैक प्रूफ हैं। भारत की कोशिश है कि इजराइल से साइबर सिक्योरिटी की इस तकनीक का ट्रांसफर कराया जाए, इसका एक समझौता किया जाए। वानाक्राई जैसे रैंसमवेयर अटैक से पूरी दुनिया दहल उठी थी। इजराइल के पास ऐसे साइबर अटैक को नेस्तनाबूद करने की, फेल करने की तकनीक है और हम इजराइल के जिस साइबर सर्वर रूम में हैं वो ऐसी सारी तकनीकों का मिश्रण है। यहाँ पर लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट चलता है। देखिए यहाँ टेम्परेचर चैम्बर हमको दिखाई पड़ रहा है। ये टेम्परेचर चैम्बर जो है बेसिकली ये ओवन है और इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डाला जाता है और उसके टेम्परेचर में जो चेंज होता है उससे ये पड़ताल मुकम्मल की जाती है कि वो सॉफ्टवेयर जो साइबर सिक्योरिटी के खतरे हैं उनको मुकम्मल उनसे निपटने में कितना कामयाब है। एक अहम बात यह है कि इजराइल भारत को साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में खासी मदद करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की बातचीत में साइबर सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा होगी और जिस तरह से अब स्टेट फैक्टर और नॉन स्टेट फैक्टर ये दोनों ही ऑर्गेनाइज साइबर अटैक करने में लगे हुए हैं, उससे निपटने में इजराइल भारत के लिए एक बहुत बड़ा जरिया साबित होने जा रहा है। इस तरह के लगातार हम जो चारों ओर क्या सिनारियो यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि हमको सर्वर नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमको सिक्योरिटी गेटवे नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमको नेटवर्क को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने की तकनीकें नज़र आ रही हैं, इन पर लगातार शोध जारी है और पूरे विश्व के 50 देशों में ये कंपनी काम कर रही है और उन 50 देशों को अपनी तकनीक दे रही है। और अहम बात यह है, जो सर्वर रूम है इसका सबसे अहम पहलू ये है कि यहाँ पर
रोज का रिसर्च इस बात पर होता है कि जो भी नए खतरे पैदा हो रहे हों या जो पैदा किए जा सकते हो उनको पहले से ही एनकाउंटर कर दिया जाता है और इनके लिए साइबर सिक्योरिटी उतनी ही बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी प्रायोरिटी है जितना कि जमीन पर आतंकवादियों से लड़ाई लड़ना है। इजराइल कैसा है, इजराइल कैसे काम करता है, इसकी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अभिषेक उपाध्याय आपको अंदर की बहुत सारी बातें बताएंगे और थोड़ी देर बाद एक डिनर होगा जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उनके स्वागत में किया जाएगा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। इसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस अंदाज में तेल अवीव में नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ हवाई जहाज से उतरते ही, वो आश्चर्यजनक था, ऐतिहासिक था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री का काफी देर इंतजार किया, एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया, गले लगाया। यह अद्भुत है। इसके पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्वागत कभी पहले किसी और हेड ऑफ स्टेट का नहीं किया। इस पूरे दौरे में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हर वक्त नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इजराइल 1948 में बना, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगले 44 साल तक इजराइल के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। 1992 में पहली बार इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए। 70 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर इजराइल नहीं गया और आज वाकई में ऐसा लगा कि इजराइल 70 साल से भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जेरूसलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर शुरू होगा, वैसे ही हम आपको जेरूसलम ले चलेंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। इस बीच हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है, इसकी कुछ खबरें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी को लागू हुए आज 4 दिन हो गए। जीएसटी को लेकर अब तक जो फीडबैक मिला है उससे सरकार संतुष्ट दिखाई देती है। केंद्र सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख आडिया ने आज बताया कि जीएसटी को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी लोगों में शंकाएं हैं, कंफ्यूजन है। जो लोग नए नियमों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए सरकार 6 दिन तक जीएसटी की मास्टर क्लास लगाएगी। अगले 3 दिन 6, 7 और 8 जुलाई को शाम 4:30 से 5:30 बजे तक जीएसटी की क्लास हिंदी में होगी और इसके बाद 10, 11 और 12 जुलाई को जीएसटी की पाठशाला अंग्रेजी में होगी। इस क्लास को दूरदर्शन के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अलग अलग व्यापारियों को जो अभी भी इंफॉर्मेशन का गैप है, पीपल वांट टू नो मोर। चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनको भी काफी कुछ जानना है नए रूल्स के बारे में, नए फॉर्म्स के बारे में। हमारे जो स्टाफ नीचे के लेवल पे है, उन सबको भी कुछ इंफॉर्मेशन की नीड है जो कि दिल्ली से ही हम पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक विस्तृत व्यवस्था की है। हमने डिसाइड किया है कि मीडिया के लिए एज वेल एज व्यापारियों के लिए या सबके लिए एक हम क्लास लेंगे। इसको हम बोलते हैं जीएसटी की मास्टर क्लास। वो 6 दिन चलेगी और 6 दिन रोज 1 घंटा चलेगी। डीडी नेशनल पे ये लाइव जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि जो प्रोडक्ट जीएसटी लागू होने से पहले पैक होकर मार्केट में आ चुके हैं, जीएसटी लागू होने के बाद अगर उनकी कीमतों में कोई फर्क आता है तो जनता को कैसे पता चलेगा। आज सरकार ने इस कंफ्यूजन को दूर किया। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि अगर जीएसटी लागू होने के बाद किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो कंपनी को 2 अखबारों में विज्ञापन देना होगा। इसके बाद 30 सितंबर तक पुराने पैक पर नई कीमत लिखकर उस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। जब प्राइस अगर इंक्रीज करता है एमआरपी से, तो उसके लिए जो है वो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या पैकर को 2 अखबार में विज्ञापन देना होता है कि ये टैक्स की वजह से अब ये रिवाइज एमआरपी होगा। और उसके बाद उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज एमआरपी लगाएगा, पर पुराना एमआरपी यथावत दिखेगा। तो 2 एमआरपी उसमें दिखेंगे। ये चीज फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान ने अभी अभी हमको ये स्वीकृति दी है इस चीज की कि 30 सितंबर तक कि वो जो भी उनके पास पुराने स्टॉक थे, जो स्टॉक मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1 जुलाई था, उसको जो है इस व्यवस्था के तहत अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो अखबार में विज्ञापन देके और स्टिकर लगा के उसको जो है कर सकते हैं। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज एमआरपी भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है। एक इसमें तीसरी चीज है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और ये जो आपके पैकर्स वगैरह होते हैं, इनके पास एक्सपेंसिव पैकिंग मटेरियल होता है।
इन लोगों के पास स्टॉक होता है, तो उस स्टॉक को भी हमने यूज करने की उनको परमिशन दी है अप टू 30 सितंबर। सवाल यह भी है कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या सभी दुकानदारों को पक्का बिल देना जरूरी होगा? अगर कोई दुकानदार पक्का बिल नहीं देता तो क्या यह गुनाह होगा? इसको रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आडिया ने क्लैरिफाई किया। आडिया के मुताबिक 20 लाख से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी अनिवार्य नहीं है। ऐसे में 20 लाख रुपए टर्नओवर वाले कारोबारी के लिए बिल देना भी जरूरी नहीं होगा। 20 लाख तक का व्यापारी जो है उसको रजिस्ट्रेशन ना लेना है, ना कोई रेगुलर टैक्स देना है। काफी कंज्यूमर हमको पूछते हैं कि 20 लाख वाला अगर कोई है तो वो हमको बिल कैसे देगा, बिल के अंदर टैक्स कैसे दिखाएगा, टैक्स कैसे सरकार को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको समझा दूं कि जब हम ये कहते हैं कि कंपोजिशन वाला या जो टैक्स एग्जेम्प्ट व्यक्ति है, ट्रेडर, वो तो फाइनल माइलस्टोन है। उससे पहले वाले जो स्टेज में टैक्स की इनकम तो सरकार को हो ही जाती है। जब होलसेलर कोई रिटेलर को बेचता है तो वो टैक्स की इनकम सरकार में आ जाती है। सिर्फ यही है कि जो लास्ट रिटेलर है उसकी वैल्यू एडिशन जो होगी उतनी कैप्चर नहीं होगी टैक्स में। इसलिए जो कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर है या तो जो एग्जेम्प्ट डीलर है रिटेलर, वो चाहे बिल में कुछ भी दे न दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो हमारे पास आ ही जाता है। सो उसमें लोग कहते हैं कि हमको कच्चा टिकट दे दिया। वो अगर कंपोजिशन वाला डीलर है तो उसमें डजंट मैटर, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीलर है तो उसको पूरा का पूरा अपना टैक्स रेट दिखाना है कि जो आपसे चार्ज कर रहा है वो। पीपल आर नॉट कंफ्यूज एंड कुछ लोग अननेसरी इसकी क्वेश्चन नहीं उठाए कि मैं फलानी दुकान में गया, वो छोटा ट्रेडर था, उसने मेरे को बिल कुछ नहीं दिया या तो बिल में कुछ लिखा नहीं। अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो ही मे नॉट बी गिविंग यू एग्जैक्ट टैक्स ब्रेकअप, ही इज नॉट सपोज टू डू इट। सरकार ने दावा किया था कि जीएसटी लागू होने से राज्यों के बॉर्डर पर ट्रकों की लाइनें खत्म हो जाएंगी। हसमुख आडिया ने बताया कि हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर जैसी कुछ जगहों पर चेक पोस्ट नहीं हटे हैं, लेकिन यहां पर माल पर टैक्स नहीं लिया जा रहा बल्कि गाड़ियों की एंट्री पर टैक्स लिया जा रहा है। आडिया ने बताया कि टोल टैक्स और एंट्री टैक्स जीएसटी के दायरे में नहीं आता। कमोडिटी के ऊपर तो कोई भी सेस नहीं लगा सकते कोई। इट कैन बी टोल चार्जेस फॉर एग्जांपल फॉर रोड। नाउ टोल चार्जेस कैन बी देयर बिकॉज वो तो रोड का यूजर चार्ज है। मंडी चार्जेस होते हैं जो मंडी यूज करने के लिए लेते हैं, एपीएमसी चार्जेस, तो वो सब थोड़े रहेंगे। वो उसके ऊपर तो वो जीएसटी का कोई अधिकार नहीं है, बट उसके अलावा कोई चीज नहीं रह सकती। करीब 22 स्टेट में से तो चेक पोस्ट निकल गई है और बाकी स्टेट में भी दे आर इन द वेरियस प्रोसेस एंड वी होप के विद इन 1 month दे विल ऑल बी एबल टू। एंड सम अदर स्टेट्स वेयर they have retained check posts only for the purpose of, say, some other thing, not for goods. For example, there was a news report ki Haryana और दिल्ली के बीच में. Now that is for collecting the charges for truck to enter Haryana. It is not for the goods loaded on the truck. Unless you have got a national permit, they take some charges, from cars or vehicles. जीएसटी लागू होने से पहले बार बार सवाल उठाए गए थे, आशंका व्यक्त की गई थी कि बहुत सारी शिकायतें आएंगी क्योंकि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इतना बड़ा देश है, लोग को दिक्कतें होंगी। लेकिन अच्छी बात है कि ज़्यादा शिकायतें नहीं आई और ये सरकार की बड़ी सफलता है। इंडिया टीवी पर हम आपको लगातार ऐसे सवालों के जवाब देते रहेंगे जो जीएसटी से पैदा होंगे, ऐसी शंकाओं का समाधान करते रहेंगे और इसके लिए सरकार के अफसरों की मदद मिलती रहेगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है जहां जीएसटी अभी लागू नहीं हुआ है। आज जम्मू कश्मीर सरकार ने जीएसटी बिल को पास कराने के लिए असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया था, लेकिन कुछ एमएलएस के हंगामे की वजह से जीएसटी पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार और विपक्ष के मेंबर आमने सामने आ गए, तीखी नोकझोंक हुई, बयानबाजी हुई, सदन में काले झंडे दिखाए गए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर कागज फेंके गए। हालत ये हो गई कि विपक्ष के कुछ विधायकों को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल को बुलाना पड़ा। मार्शल ने कुछ एमएलएस को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। आरोप है कि निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने मार्शलों के साथ भी मारपीट की। 4 दिन का सेशन है। उम्मीद करनी चाहिए कि हंगामा करने वाले एमएलएस इस बात को समझेंगे कि जीएसटी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए फायदेमंद है, इसलिए वो जीएसटी बिल को असेंबली में पास जरूर होने देंगे। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे लालू यादव के परिवार पर नया आरोप क्या लगा। जब लालू का बेटा 3 साल का था तो उसे 13 एकड़ जमीन कैसे मिल गई। बिहार में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज फिर लालू यादव के परिवार पर एक नया आरोप लगाया।
सुशील मोदी का कहना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों को नौकरी देने, ठेके दिलवाने, एमएलए, एमपी या मंत्री बनवाने के बदले उनकी जमीन और अपने परिवार के नाम पर लिखवा लिया करते थे। सुशील मोदी आज 25 साल पुरानी एक गिफ्ट डीड लेकर आए। ये गिफ्ट डीड लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के नाम की है। 1992 में ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने तेज प्रताप को मुजफ्फरपुर की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन दान कर दी थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद बिहार के बाहुबली नेता थे, विधायक थे, लालू की सरकार में मंत्री रहे। ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी ने जिस वक्त तेज प्रताप को जमीन गिफ्ट की, उस वक्त तेज प्रताप यादव की उम्र सिर्फ 3 साल 8 महीने थी। ये ब्रिज बिहारी प्रसाद जिनकी हत्या हो गई थी और जो 95 में या 90 में बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी ने भी 23 मार्च 92 को 13 एकड़ 12 डिसमिल जमीन तेज प्रताप यादव को गिफ्ट कर दिया, दान दे दिया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो दान प्राप्त करने वाला है तेज प्रताप यादव, उस समय उसकी उम्र मात्र 3 साल 8 महीना उसकी उम्र थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद की बाद में हत्या हो गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी फिलहाल बीजेपी की एमपी हैं। सुशील मोदी ने कहा कि जमीन गिफ्ट करने की जो वजह लिखी गई है वो हैरान करने वाली है। गिफ्ट डीड में लिखा गया था कि तेज प्रताप रमा देवी का ख्याल रखते हैं। तेज प्रताप नाबालिग हैं, फिर भी जहां तक संभव होता है वो रमा देवी की सेवा करते हैं। इसी वजह से रमा देवी की इच्छा हुई कि वो अपने जीवित रहते ही तेज प्रताप को जमीन गिफ्ट कर दें। सुशील मोदी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी ने पूछा कि 3 साल का बच्चा किसी की सेवा कैसे कर सकता है, किसी का ख्याल कैसे रख सकता है? आखिर 3 साल 8 माह की उम्र में तेज प्रताप ने क्या खिदमत की, क्या सेवा शुश्रूषा की, जिससे खुश होकर यह जमीन दान कर दी गई। आज भी इस जमीन के बगल की जो सड़क है वह लालू रोड के नाम से जानी जाती है। जमीन ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने दान की थी। सुशील मोदी के आरोपों पर जब रमा देवी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि 3 साल का बच्चा क्या सेवा करेगा। उन्होंने तो वही किया जो उनके पति ने कहा था। हम तो हाउसवाइफ थे। हमारे पति कहें कि वहाँ सड़क बिजली नहीं है, हम लोग का ज़मीन वहाँ खरीदे हुए हैं, अगर दे देंगे तो उस समय मुख्यमंत्री लालू जी थे, तो सबके लिए सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगी, बाढ़ से लोग दह जाता है पूरा खेते, तो वहाँ पर पुल बन जाएगा तो सेफ हो जाएगा, तो दे देते हैं। बस यही सोच था। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि रमा देवी ने किस तरह से 3 साल 8 महीने के बच्चे को अपना खैरख्वाह बनाकर उसको ज़मीन दान दी थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जिस तरह के सबूत हैं, जिस तरह के दस्तावेज हैं, उससे साफ लगता है कि दूसरों की ज़मीन जायदाद गिफ्ट दिखाकर ली और ये इस अंदाज में किया गया कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों का कहना है कि ये ओपन एंड शट केस है और इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार को लेने के देने पड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी का नया रूप, ऐसा अंदाज जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब मैं आपको ममता बनर्जी का गुस्सा दिखाता हूं। ममता का यह गुस्सा पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी से है। ममता ने इल्जाम लगाया कि गवर्नर ने धमकी दी। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए उन्होंने ऐसे बात की जैसे वो गवर्नर नहीं बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हो। असल में पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक लड़के ने फेसबुक पर ऐसी पोस्ट डाली जो काफी ऑब्जेक्शनेबल थी। कम्युनल टेंशन हुआ। फेसबुक पोस्ट लिखने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन उससे भी माहौल शांत नहीं हुआ। गाड़ियों में, घरों में आग लगा दी गई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी बिगड़ गई है। इसी मुद्दे पर बीजेपी का एक डेलीगेशन गवर्नर से मिलने गया और हालात को काबू में करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाने की मांग की। इसके बाद गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने ममता बनर्जी को फोन किया। उनसे संविधान मेने ताके काज करते हैं। आमिও চিফ মিনিস্টার, আমারও সাংবিধানিক পোস্ট।
আর মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমার অ্যাপিল থাকবে, ডোন্ট বিহেভ লাইক দিস, ইটস ভেরি ইনসাল্টিং অ্যান্ড হিউমিলিয়েশন। আমি আমার ছোট্টবেলা থেকে রাজনীতি করি, আমার রাজনীতিতে আমি 13-14 বছর বয়স থেকে আমি অ্যাক্টিভ পলিটিক্স করি, 11-12 বছর বয়স থেকে। আজ আমার সারা জীবন আমি ফেলে এসেছি এটা করতে করতে। আজকে এইখানে এসে আমাকে এত বড় বড় অসম্মান কথা শুনতে হবে? আই এম রিয়েলি সরি। যদি আমি এর জন্য কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকি, আই এম রিয়েলি সরি, আই অ্যাপোলজাইজ ফর দ্যাট। কিন্তু আমার মনে আজকে খুব লেগেছে, আমার বিবেকে আঘাত লেগেছে। আমি এখানে বসে থাকার জন্য আসিনি। अब मैं आपको ममता बनर्जी का ऐसा रूप दिखाता हूं जो कई लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी उल्टी रथ यात्रा में शामिल होने गई थी। वहां उनकी साड़ी में भगवा रंग दिखाई दिया। कोलकाता का मायापुर में इस्कॉन मंदिर है। ये मंदिर हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालता है। इस बार भी 25 जून को रथ यात्रा निकाली गई थी। 9 दिन तक शहर भर में यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा का अंत उल्टी रथ यात्रा से होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की मंदिर में वापसी होती है। कल ही उल्टी रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें ममता बनर्जी शरीक हुई। इस मौके पर ममता ने रथ को खींचा। यहां ममता ने कहा कि रथ यात्रा में वो शामिल नहीं हो पाई थी, इसलिए वो उल्टी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आई है। कोलकाता में ममता बनर्जी खुद उल्टी रथ यात्रा में शामिल नहीं हुई, रथ खींचा, लेकिन मुर्शिदाबाद में 400 साल पुरानी परंपरा को रोक दिया गया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा में प्रशासन ने उल्टी रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी। 400 साल से हर बार उल्टी रथ यात्रा का जुलूस जंगीपुरा की परिक्रमा करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि वहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके के लोगों में इससे काफी गुस्सा है। ममता ने मौके के हिसाब से साड़ी पहनी, साड़ी में भगवा रंग दिखाई दिया। उन्होंने रथ यात्रा में शामिल हुई, रथ को खींचा। ये अच्छी बात है, इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां हिंदुओं को उल्टी रथ की इजाजत न देना ठीक नहीं है।